Pooja Patwa, and today we are going to read the poem Where the Mind is Without Fear. Before I start talking about the poem, I would like to mention about Rabindranath Tagore over here. So Rabindranath Tagore was born in 1861 and he died in 1941. He was also known as Gurudev. He was a great Indian poet, short story writer, playwright, songwriter, and novelist. He has contributed a lot to Bengali literature. Some of his famous short stories are Kabuliwala and many more. And one of his famous work is Gitanjali. He was the first non-European to win the Nobel Prize for Literature in 1931. As we all know, India's national anthem Jana Gana Mana and Bangladesh national anthem Amar Sonar Bangla are also penned down by him only, and Sri Lanka's national anthem was also inspired from his work only. Now let us talk about the poem Where the Mind is Without Fear. This poem is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali, possibly in 1900, under the title Pratna, that means prayer. It appeared in the volume called Nevedya in 1901. Later, in 1911, Tagore himself translated the Bengali poem into English, and that translation appeared as poem 35 in his Nobel winning anthology Gitanjali, that was published by Indian Society, London in 1912. Now I'll be giving you some of the background of the poem. So when this poem was written, India was under the British rule and the people were eagerly waiting for freedom. The poem is written in the form of a prayer to the God, the Almighty, for a true freedom for his country. And thus, Tagore reveals his own concept of freedom throughout the poem. So, the poet is telling what is freedom according to him. This poem is so famous all over the world that when former American president Barack Obama visited India, he recited some of the lines of this poem in the Indian Parliament. So let us start reading this beautiful poem. Where the mind is without fear and the head is held high. So the poet is saying he is dreaming of the country. उसकी कंट्री जब आज़ाद हो जाएगी तो वो कैसे आज़ाद होगी और उसमें क्या क्या होगा. पहले तो माइंड जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, मतलब वो किसी डर में नहीं होगा. वो लोगों के जो एक्शंस होंगे वो किसी डर की वजह से नहीं होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से होंगे. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो लोग होंगे वो सेल्फ डिग्निटी से अपने सरों को ऊंचा रखेंगे, मतलब उनमें आत्मसम्मान होगा. जो लोग हैं वो किसी कंपल्शन के अंडर नहीं होंगे, वो उनको कोई विरोध नहीं कर रहा होगा, वो जो करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे. इन द सेकेंड लाइन ही इज़ सेइंग वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और उसकी कंट्री में जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो फ्री होगा, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा कि सिर्फ ऊंची जात वालों के, अपर क्लास के लिए है या रिच लोगों के लिए है, वो सभी के लिए फ्री होगा. एंड जो बच्चे होंगे वो चार दीवारी में बैठ के नहीं पढ़ेंगे, वो आज़ाद होंगे, वो अपने आसपास के ऑब्ज़र्व करेंगे, अपनी नेचर को ऑब्ज़र्व करेंगे एंड वहाँ से वो सीखेंगे. वो कोई प्री डिटरमाइन लेसन को लर्न नहीं करेंगे, वो चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व करके समझेंगे और उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे. और यही कॉन्सेप्ट है जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो अपना स्कूल है, अपने उनके इंस्टीट्यूशंस हैं शांति निकेतन, उसमें फॉलो किया जाता है. Now, in the next line, he is saying, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Now, यहाँ पे fragments means parts, और narrow domestic walls क्या हैं? Superstitious beliefs, ठीक है, जो अंधविश्वास हैं, कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, ये जो सारे सुपरस्टिशंस हैं और फॉल्स बिलीव्स हैं. और वो यहाँ पे पोइट सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है कि जो पूरी की पूरी दुनिया है
वो टुकड़ों में नहीं बटी होगी इन सुपरस्टिशंस की वजह से या अंधविश्वासों की तरफ वजह से पूरी दुनिया में यूनिटी होगी और कोई भी एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेगा जस्ट बिकॉज के वो काला है या गोरा है या अमीर है या गरीब है। सारे लोग एक एक दूसरे को अपने इक्वल समझेंगे, दुनिया में इक्वलिटी होएगी एंड यूनिटी होएगी। इन द नेक्स्ट line he is saying where words come out from the depth of truth। और अब इस लाइन में पोइट क्या कह रहा है कि जो लोग होंगे वो सच्चे होंगे, उनके दिल से, उनके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो दिल की गहराई से होंगे, सच्चाई के होंगे, वो बिल्कुल भी झूठे नहीं होंगे और इसी सच से वो अपने देश को परफेक्शन की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। इन द नेक्स्ट लाइन पोइट इज सेइंग वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अब इसमें स्ट्राइविंग का मतलब है डिटरमाइन एक्शन, के जो लोग उसकी कंट्री के काम करेंगे वो तब तक उस काम को करेंगे, जो भी काम करना स्टार्ट करेंगे वो तब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे, काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि उस चीज़ को, उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, उस गोल को अचीव नहीं कर लेते और या उसमें परफेक्शन नहीं आ जाती। जो पोइट है वो बिल्कुल नहीं चाहता जो उसकी कंट्री के लोग हैं वो लेज़ी हों या काम से जी चुराने वाले हों। वो चाहता है कि उसकी कंट्री के जो लोग हैं वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने वाले हों, जिससे कि उसकी जो कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो अच्छे से डेवलप करे और फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन द पोइट इज सेइंग where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। अब यहाँ पे clear stream क्या है? clear stream है clear stream of reason means कि जो लोगों की तर्क शक्ति है, तो उसको रीजनिंग और लॉजिकल को उसने क्या बोला है? क्लियर स्ट्रीम। ठीक है, तो वो कहता है वो उसने अपना रास्ता नहीं भटकी है कहाँ पे? ड्रेयरी डेजर्ट। अब ड्रेयरी डेजर्ट क्या है? जो हमारे पुराने आदतें थी, डेड हैबिट्स थी, ठीक है, जो हमारे मतलब उस जगह पे नहीं पहुंच गई जहाँ पे सुपरस्टिशियस है, ड्रेरी डेजर्ट सुपरस्टिशियस है। तो वो कहता है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं है, वो हर चीज़ को तर्क वितर्क से लॉजिकली सोचते हैं, उसको रीजनिंग से सोचते हैं और उनको जो अब उनके एक्शंस हैं वो पुरानी उनकी जो रिचुअल्स थे उनकी वजह से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। वो हर चीज़ को सोचते हैं, विचारते हैं एंड देन वो उस काम को करते हैं और किसी काम को इस वजह से करना नहीं छोड़ते हैं कि वो किसी रिचुअल के ख़िलाफ़ है या किसी सुपरस्टिशियस के ख़िलाफ़ है। इन दिस वे पोइट चाहता है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस ना हों, वो पूरे लॉजिकल हों और अपने हर काम को, हर एक्शन के पीछे उनको लॉजिक पता हो, हर जो चीज़ गलत हो रही है वो उसको रोकें और जो दूसरों को समझाने की उनमें शक्ति हो, मतलब उनमें रीजनिंग हो, उनको पता हो कि ये काम क्यों सही है या क्यों गलत है। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन द पोइट इज सेइंग where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। अब यहाँ पे दी का मतलब क्या है? यू। अब यहाँ पे जो पोइट है वो भगवान को कह रहा है, ऑल माइटी को बोल रहा है कि जो लोगों के, मेरी कंट्री के जो लोग हैं उनका जो मन है वो तुम्हारे द्वारा चले। कहाँ चलाया जाए, कहाँ पहुँचाया जाए? जहाँ पे लोगों की जो सोच है वो बड़ी हो, वो नैरो माइंडेड ना हो, वो ओपन माइंडेड हो, वो सुपरस्टिशियस ना हो, सुपरफिशियल ना हो, उनमें सोचने की क्षमता हो और वो हार्ड वर्किंग हो। वो चाहता है कि लोग उस ओशन तक पहुँचें जहाँ पे लोगों में सोचने की शक्ति हो और वो अपने काम के पीछे हर रीज़न को उनका पता हो। तो इन दिस वे पोइट इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज कंट्रीमैन टू बी very reasonable and hard working। Now in the last line the poet is saying into that heaven of freedom my father let my country awake। अब यहाँ पे पोइट उस चीज़ को, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो पोइट ने ऊपर वाली मेंशन करी हैं, तो वो अगर वो होती हैं, अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो वो कंट्री कैसे हो जाएगी? हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी का स्वर्ग होगा, स्वर्ग की आज़ादी होगी। ऐसे जैसे मर्जी ले लो। तो वो कह रहा है कि
वो भगवान को माय फादर बोल रहा है, कहते हैं ऑल माइटी, कि मेरी कंट्री को उस स्वर्ग में ले जाओ, मेरी कंट्री को वैसा स्वर्ग बना दो जहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हूँ, जहाँ पे मेरे जो लोग हैं, मेरी कंट्री मैन है, वो सारे सुपरस्टिशियस ना हो, हार्ड वर्किंग हो, रीज़नेबल हो, ठीक है, लॉजिकल हो, और वो कभी काम से जी न चुराते हों। ऐसा ऐसा वो चाहता है, जो पोइट है वो चाहता है कि लोग जो हैं वो ऐसी नैरो थिंकिंग से ऊपर उठे और अपनी कंट्री को तरक्की पे लेके जाएं। तो लास्ट लाइन में पोइट क्या कह रहा है, लेट माई कंट्री अवेक, वो चाहता है कि मेरी कंट्री ऐसी आज़ादी को प्राप्त करे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द literary devices used in this poem by the poet.